Stay with us, Anshul. We have to move to breaking news in this same story. We played out for you those visuals of Swati Maliwal within the car. Her family now giving a first reaction. Her mother saying, she's spoken to CNN News 18, this is Sangeeta Maliwal. She's saying that Swati is not in the right condition. Essentially, it seems she's asking for media sensitivity at this time. She said that Maliwal is not in a state to talk right now. Let's just go to Yash to understand more. Yash, is that the correct interpretation of what it is that her mother is trying to say? See, Toya, it's a very obvious thing because something like this happening with anyone could actually taint their senses. In fact, also could be very toll-taking on their mental health. But why it becomes important for Swati Maliwal to speak out is because she's not just another person who has been assaulted by just anyone. She is she's a Rajya Sabha MP, and that too a person who has also fought for women's rights for a very long time, who was a former DCW chairperson. So that is why it becomes very important to actually for Maliwal to actually speak on this very issue, because now things are very clear, like my colleague Anshul and Anvit were also mentioning, that now the statement is there. Now one thing has been confirmed, that she has been assaulted. One thing is also clear, that Vibhav Kumar is the person who has assaulted her. So now one thing to look out for is that why she's not speaking to the media, why she's not coming out and talking about what has happened with her. Is there some sort of political pressure she's actually under? Because we have to understand that she's still a part of the Aam Aadmi Party, and also the elections are also around the corner, and the entire Aam Aadmi Party knows if Swati Maliwal comes out and speak about this, that could actually can go down really bad for the party at this juncture. So there is a high possibility that she could be under some sort of a pressure, or she's consciously not speaking about this issue because she doesn't want to hog the limelight. Rekha Sharma, the NCW, the National Commission for Women Chief, is speaking right now. Let's just take a look. तो कह रही थी कि आप बाहर आएं और कंप्लेंट करें। मुझे लगता है वो ट्रॉमेटाइज थी, क्योंकि अपने ही लीडर के घर कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि इस तरह से मार पिटाई होगी, वो भी एक एमपी की, राज्यसभा एमपी की, जो हमेशा खुद महिलाओं की बात उठाती रही हैं। हमारे चाहे कितने भी डिफरेंसेस रहे हों, लेकिन हम हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे, और मैं हमेशा उसके साथ खड़ी हूँ। इसीलिए मैंने ट्वीट पे कहा कि आई एम विद यू, यू कम आउट एंड कंप्लेन। काफ़ी मुझे लगता है सोचने के बाद, या जब उनको लगा होगा कि वो बात कर सकती हैं, तो कल पुलिस से भी कंप्लेंट की और एफआईआर रजिस्टर हो गई है। आज मुझे पता चला है, कल कमिश्नर से ही पता चल गया था कि एफआईआर कर रहे हैं, क्योंकि कंप्लेंट आ गई है। हमारे पास एटीआर भी, एक्शन टेकन रिपोर्ट आ गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम लोग एफआईआर कर रहे हैं, और चार्जेस भी उन्होंने मेंशन किए हैं। इसमें एफआईआर नंबर 277/2024 US 308-341-354B 306-309 IPC, ये सारे चार्जेस के अंतर्गत ये एफआईआर दर्ज हुई है, और आज मेरे ख्याल वो मेडिकल के लिए भी लेके गए हैं। मैं बात करने की कोशिश में करूँगी, थोड़ा ठीक हो जाएं तो आई विल पर्सनली मीट स्वाति एंड आस्क अबाउट हर वेलफेयर। आई होप शी इज़ फाइन बेटर नाउ, बट आई थिंक इट विल टेक हर टाइम टू कम आउट ऑफ दैट ट्रॉमा। और मैं समझ सकती हूँ, बहुत बड़ा ट्रॉमा से गुजरी है, फिज़िकल एंड मेंटल बहुत ज़्यादा ट्रॉमा रहा है। हमने विभव को जारी किया था नोटिस, और कल उनकी पत्नी ने लेने से मना किया, फिज़िकली लेने से मना किया, तो हमने उन पे डोर पे पेस्ट भी किया वो नोटिस, और पुलिस के द्वारा भी दिया गया। आज मेरी टीम फिर से गई है पुलिस के साथ नोटिस रिसीव कराने, और अगर कल तक वो नहीं आते हैं तो पुलिस तो ढूंढ ही रही है, पुलिस ने अपना नोटिस भी वहाँ पे लगाया हुआ है। हम भी पर्सनली जाकर मिलेंगे, और उसके घर में जाके टीम मिलेगी। कल तक हम वेट करते हैं, शायद दोबारा आए। एक डेट हमने कल की भी दी है उसको कि कल आए, तो आई एम होपिंग कि कल आएगा। नहीं आएगा तो हम खुद पर्सनली जाकर भी इंक्वायरी करेंगे। पुलिस इंक्वायरी कर रही है, साथ साथ
हमारी भी इंक्वायरी जारी रहेगी। मैं पुलिस की जानकारी की वेट करूंगी कि सीसीटीवी कैमरास में क्या आया, नहीं तो हम लोग भी सीएम घर जाकर इंक्वायरी को जारी रखेंगे। मैम, विभव की बात की जाए तो कल अरविंद केजरीवाल जब लखनऊ में थे तो वहाँ पर भी नजर आए थे। उसके अलावा जहाँ जहाँ अरविंद जा रहे हैं वो साथ में है, तो ऐसे में ये कह देना कि ये नोटिस नहीं रिसीव करेंगे, या फिर आपको लगता है कि एक तरह से बचने की कोशिश है? मुझे लगता है कि ये सीएम दिखा रहे हैं कि आई डोंट केयर फॉर एनीथिंग। आप लोग क्या सोचते हैं मैं नहीं केयर करता। ये एक इंडिकेशन है दिखाने का कि मैं तो लेके जा रहा हूँ उसको अपने साथ। और मुझे लगता है वो एक महिला के का साथ ना देते हुए परपिट्रेटर का साथ ज़्यादा दे रहे हैं। और सीएम आवास में इस तरह की घटना अपने सीएम के आवास में जहाँ वो प्रेजेंट थे, मेरे ख्याल से उनके स्टेटमेंट में ये है कि उनकी जानकारी में था ये हो रहा है। तो अगर सीएम की जानकारी में था तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन सीएम के ऊपर भी आता है कि जो महिला सुरक्षा के नाम पर फ्रीबीज भी बांटते हैं, वो अपने ही घर में महिला जब पिट रही हो तो अपनी आंखें मूंद लेते हैं और उसके बाद कोई भी उस जो आदमी करता है उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। देखिए, पुलिस इंक्वायरी कर ही रही है। हमने अपनी इंक्वायरी टीम भी बनाकर भेजनी है और पुलिस अगर हमें साथ साथ रखेगी तो बेटर है, नहीं तो हम अलग से भी। मैम, कंप्लेन लेटर में अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं है जी, और नहीं, विभव लेकिन कुमार का हाँ, नाम लेकिन है। उसमें ये मेंशन्ड है कि वो उनकी जानकारी में था। तो जानकारी का में था मतलब ही नोज, और उनके घर में हुआ है ये। तो ऐसा नहीं हो सकता कि घर में हुआ और उनकी जानकारी ना हो, एंड ही वाज प्रेजेंट देयर। तो मैम, क्या आप आगे जाके अरविंद केजरीवाल को भी समन नोटिस भेज सकते हैं? मैं थोड़ा पुलिस की और डिटेल्ड एक बार रिपोर्ट आ जाए, देखते हैं उसके बाद क्या करना है। केजरीवाल के घर सीएम हाउस जाने का आप लोगों ने तय किया, तो वहाँ पर जितने लोग थे, फिर चाहे उनकी पत्नी हो, फिर चाहे खुद सीएम हो, बिल्कुल, जो वहाँ बाकी स्टाफ भी होगा उनसे भी जानकारी, और पुलिस कर ही रही है ये सारा कुछ, करेगी पुलिस भी कि जो भी प्रेजेंट होगा उनके स्टेटमेंट लिए जाएंगे वहाँ पर। आप लोगों की जानकारी से मैम कितने वहाँ पे आई विटनेस थे? मेरी जानकारी में अभी कुछ ऐसा है नहीं। पुलिस ने अभी नहीं बताया कि कितने विटनेस थे, ये उनकी रिप्लाई में नहीं है। मैम, पुलिस तो कर ही रही है, लेकिन अगर आप लोग की भी टीम जाती है तो आप लोग भी अपना एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करेंगे जिसमें केजरीवाल हो या उनकी पत्नी हो, सबसे हम बिल्कुल पूछेंगे। अगर मैंने That's the NCW chief, Rekha Sharma. As you can see, she's repeating allegations she in fact made yesterday too. We'll head into a quick break. On the other side, more on this story and others.